Hi, people. I'm Saksham, and today I'm going to talk about my life journey and the two visits that I did in my post graduation. One was at Bharat Mandapam, it was a book fair, World Book Fair, of course, and the other one was at Adi Mahotsav, and it was in Major Dhyan Chand Stadium. So let's go. So talking about my life journey is it was a bit of tough to get till here. मतलब होता है ना कि कुछ बड़ा अचीव करने के चक्कर में जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं उन्हें आप नज़रअंदाज कर देते हो. काइंड ऑफ दैट इट वॉज अ बिट ऑफ बट आई फील I basically reside in Panipat. It's a town in Haryana only. And yes, I am a Punjabi, not a Jat. I have a huge respect for the Jat people, but it's a stereotype because after my 12th, I was in Pitampura, Delhi, and there I did my graduation from Vivekanand Institute of Professional Studies. So the people had a stereotype कि ये तो हरियाणा से है तो ये जाट ही होगा. I am 6'1", I have a good height, but I don't wear sports shoes everywhere, so I am not a Jat boy, I am Punjabi boy. So going forward, in my life I was such a shy guy. मतलब I can't even approach someone, I can't even talk to someone. Basically an introvert person. Because मेरे genes भी ऐसे ही हैं. My dad is so much introvert person. He didn't even talk to me. मतलब कि जैसे होता है ना कि हाँ एक लेवल पे बात करना अपने डैड से हर एक लड़के का ड्रीम होता है कि भाई बट एक ना रिस्पेक्ट होती है डैड के लिए. मम्मा के साथ तो हर एक बंदा अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं, बट डैड के साथ वो कंफर्ट जोन आता नहीं है यूजुअली. बट इन कोविड टाइम्स I did achieve that. I had my dad at my home, but he has a business, so he had to go to work daily, even if it was COVID or anything happening in the world. He has to go to the business. We have a business of grocery stores, so basically the COVID times was grateful to us, but a kind of वो तो चलता ही है, लाइफ अप एंड डाउन तो दिखाती ही है. बट दैट वाज द टाइम कि मैं अपने डैड के साथ बहुत क्लोज हो गया. आई वाज so close to him during that time because he had COVID, and that made me realize life is short and we don't know what will happen to anyone, go what will go north and what will go south. We don't know about it. So I did my higher studies till 12th from Panipat only, and then I moved to Delhi. For a boy like me, it was a fascinating place for the first time to moving to Delhi, because we all know Delhi, a metropolitan city. Everyone is basically fond of the place. Delhi wale hain, ye wo. We have heard so many memes about Delhi, and moving to that place, and I didn't had a clue कि क्या करना है, कैसे करूँगा. घर वालों से दूर तो अब तक रहा नहीं था, बट नाउ आई हैव टू डू दैट. मुझे रहना पड़ेगा. इफ़ आई हैव टू स्टडी, इफ़ आई हैव टू डू माई graduation, I have to stay away from my parents or my loved ones. So when I moved to Delhi, it was kind of ऊपर नीचे, बट कि हाँ अब तो करना ही है, जैसे कैसे करके भी रहना अब यहाँ पे. ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट होना है, मतलब
देयर वाज नो वे कि कोई मुझे वहाँ से निकाल सकता कि अब तो चलो खुद ही सब करना पड़ेगा. एंड देन आई वॉज so introvert person back then when I was in Panipat, or I was till 12th class. बट अब नए कॉलेज में आके एकदम से जो ग्रुप सर्कल बनता है ना 10-20 लोगों का, आज तो भाई तेरे अलावा कोई अच्छा दोस्त वो मेरा भाई है, ऐसा ग्रुप बना मेरा. आई वॉज क्लोज टू देम, आई स्टिल एम क्लोज टू देम. बट वो होता है ना कि कोई चला निकल जाता है उस 20 ग्रुप में से, आखिरी में 10-12 रह जाते हैं, 8 निकल जाते हैं या कुछ हो जाता है. सो इट वॉज लाइक दैट ओनली. आई एन्जॉयड माई ग्रेजुएशन वेरी मच. देयर वर मैनी इंसिडेंट्स व्हेन आई वाज फीलिंग अ बिट लो कि मुझे अब तो यहाँ से निकलना है, मेरे को घर जाना है, आज तो घर ले जाओ, आज मुझे घर छोड़ दो जाके वापस, मुझे अपने घर वालों के पास रहना. बट सम टाइम इट वॉज लाइक कि हाँ भाई पार्टी फन, घूमना फिरना. आई हैड मैनी रिलेशनशिप दैट टाइम, not only with a girl but also with my boys. I enjoyed with them, I partied with them. I was in a very very safe place कि चलो आज मन कर रहा है कुछ घर का खाने का तो किसी दोस्त के घर चलते हैं ना. तो that was like my graduation. I enjoyed my graduation. So now when I traveled to Noida, it's not far away from Delhi but it is far away. वहाँ पे तो बहुत ग्रुप सर्कल ऐसे था कि साथ रहने का, हर रोज़ उठना बैठना. We used to chill together, we used to go college together. And वहाँ पे 80% अटेंडेंस नेसेसरी भी नहीं थी. सो कॉलेज जाना और बस वहाँ से वापस आ जाना. It was that fun कि we haven't attended, I guess 4-5 classes ही अटेंड करी है मैंने पूरे अपने ग्रेजुएशन में. एंड स्टिल आई स्कोर्ड 9 CGPA. 2 साल ऑनलाइन थे भाई. बट इट वॉज अ काइंड ऑफ जर्नी कि मुझे उसमें फ़न आया, कि मुझे उसमें किसी का सोचना नहीं पड़ा. मुझे बस उसमें सीखने को मिला कि मुझे दोस्ती यारी करनी है, मुझे अच्छे दोस्त मिलेंगे, मुझे अच्छी लाइफ बनानी है. दैट काइंड ऑफ स्टफ वॉज देयर. फिर जब मैं MBA करने नोएडा आया तो आई हैड नो क्लू कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ. घर का बिजनेस छोड़ के सक्षम क्यों नोएडा MBA करने पहुँचा. स्टार्टिंग इट वॉज लाइक कि भाई वी हैव टू वेयर फॉर्मल्स, वी हैव टू डू दिस, सो मच रूल्स एंड रेगुलेशन. और मैं जहाँ से आया था रूल्स तो कुछ फॉलो करे ही नहीं ना आज तक. और जितना मैं 3 साल में दिल्ली रह के बदला हूँ उतना मैं कभी नहीं बदल सकता. कि एकदम फ्लिप पर्सनैलिटी होती है ना, कि फ्रॉम अ इंट्रोवर्ट गाय टू एन एक्सट्रोवर्ट गाय. दैट वॉज माई काइंड ऑफ जर्नी आई हैड इन माई ग्रेजुएशन. एंड आफ्टर दैट कमिंग टू नोएडा इन MBA कॉलेज, आई वॉज अ बिट नर्वस कि वहाँ पे तो मेरी एज के लोग थे ना जो 12th पास आउट करके आए हुए थे. यहाँ पे तो मेरे कोर्स के भी नहीं होंगे, मेरे से बड़े भी होंगे, छोटे तो कोई मिलेगा नहीं क्योंकि मैं ही छोटा हूँ. आई हैड अ 1 year ड्रॉप बट आई गेस एवरेज 22-23 ईयर्स की होते हैं लोग. बट फिर भी एक नर्वसनेस तो रहती है यार दिल में कि क्या करेंगे, कैसे होगा सब. क्योंकि यहाँ पे तो सब जॉब लेने आए, वहाँ पे तो मैंने मस्ती कर ली, लेकिन यहाँ पे तो मुझे जॉब ही चाहिए ना. एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हर एक बच्चे का वही है कि वी हैव टू डू जॉब. कि मुझे तो प्लेसमेंट से मतलब है, मुझे जर्नी का क्या, मुझे पढ़ाई से क्या मतलब, मुझे बस प्लेसमेंट दे दो, 15 लाख लो, प्लेसमेंट दे दो. तो कंपटीशन होगा, ये होगा. एंड आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो नर्वस भी होता था बहुत. अब तो मैं बहुत ओपन अप हो गया, लेकिन मैं अपनी ग्रेजुएशन में भी इवन प्रेजेंटेशंस देते टाइम अब कभी कभी वो कोल्ड फीट वाली फीलिंग आ जाती थी
बोलते बोलते नहीं यार, कुछ बोल दिया किसी ने तो कैसे इनके सामने बोलूँगा। अपने दोस्तों के साथ तो फुल एक्सट्रोवर्ट, अच्छी दोस्ती कर ली, बट किसी के आगे बोला ही नहीं जाता था। बट जब मैं MBA करने आया तो मैंने कहा यहाँ तो अगर चुप रहा तो चुप ही रह जाऊँगा। तो आई स्टार्टेड विद माई CRW प्रेजेंटेशन। उसमें मैंने इतनी कैजुअल प्रेजेंटेशन दी थी, इतनी कैजुअल कि मैं वहाँ जाके बस ऐसे डेस्क पे जाके आराम से फॉल बैक कर गया था एंड आई गेव द प्रेजेंटेशन एंड एक्चुअली एवरीवन लाइक्ड इट बिकॉज आई एडेड अ बिट ऑफ ह्यूमर. What the things I do, I am a person who can roast people and get roasted too, but not very easily. I have a trait that I make friends very easily. I get comfortable with anyone at any time very, very fast. And the videos for the Bharat Mandapam will be right now. So what's your name? My name is Atir Khan. Sir, so how many books do you publish? What is the publishing model? Our publishing model is the Times of India, Navara Times and the Economic Times. Can you tell me some business model that's they're working on? The business model newspaper you can say is Economic Times. Okay. And what would be the supply chain? I mean that how do you manage the supply chain? We have vendors like hawkers you can say. They supply the newspaper to the institute, colleges and homes as well. Okay. And anything related to the business part of the publishing means that the supply chain and the marketing that you do. You told about the supply chain, but the marketing that you do to that attract customers. Actually, Times of India is a brand. Yes. We don't need any kind of marketing. Everybody knows this because it is not only of India, it is a world largest printing newspaper. Yes sir. So I am a marketing student of a MBA college. Okay. तो कुछ मुझे बताइए कि that should give me a chance to मतलब कि ऐसे brand build करने में या फिर कुछ ऐसा कि मुझे ध्यान रखना चाहिए during my what's the main factor during The main thing is that show the if I consider it you are selling a product. Yes. Show them the positive things of the product. always the positive thing. Always the positive thing and in which aspect you are best at. Okay. Show them that we have this product and the best part of this product is this and it makes it different from other products. Okay sir. Thank you so much. You're welcome. Thank you sir. And after the completion of this task, the Bharat Mandapam one, went to Adi Mahotsav and there it was fun. Adi Mahotsav was fun, but Bharat Mandapam लोगों को अप्रोच करना कर सकता हूँ, नहीं अब तो कर सकता हूँ, बट रिजेक्शन मिल रहा है अब. पहले रिजेक्शन नहीं मिलता था. हमने वीडियो बनाएंगे, हमारे को मना करा हुआ वीडियो बनाने से. अब ऑडियो ले लीजिए, वीडियो नहीं. हमने तो दे दिया इंटरव्यू. आप ही का एक डाल के कोई लोग आए थे, हमें उन्हें इंटरव्यू दे दिया. यही 4 चीज़ें मैंने 5 चीज़ें सुनी हैं वहाँ पे. फिर जाके मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने इंटरव्यू दिया, जैसा आपने देखा अभी. उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाया मैं. एंड अब फिर आदि महोत्सव पे जाते हैं हम. लेट्स गो. तो भैया आप कहाँ से हो? सर हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट चक्राता से हैं. अच्छा. हमारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं पहाड़ी. मतलब वहीं के ही मैन्युफैक्चरिंग वहीं के सारे प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल, सारा हमारा वहीं का ही रहते हैं, वहीं के प्रोडक्ट. तो आपके क्या क्या बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं? हमारा सर सबसे पहले है हनी. हनी जिसमें 2 वैरायटीज़ होती है, एक मल्टी फ्लोरा, एक फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट. अच्छा. उसके बाद हमारा फेमस होता है राजमा. यह है चक्राता राजमा. तो इसमें नॉर्मल राजमा से क्या फ़र्क है वैसे? ये ऑर्गेनिक होता है सर. अच्छा. सारा ये बेसिकली सारा ऑर्गेनिक है? सारा ऑर्गेनिक है. ओके. तो फिर आपकी मतलब आप सप्लाई दिल्ली में करते हो या फिर कैसे है? नहीं, अभी तो हमारा सर लोकल में ही है, लोकल डिस्ट्रिक्ट में. लेकिन अभी हमें ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए हैं दिल्ली में. तो आप क्या ऑनलाइन वगैरह कर रहे हो? ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन आ गए हो आ आप? जाएगा. तो सारे प्रोडक्ट्स वही. कोई आपका बेस्ट सेलर कौन सा है, मतलब बेसिकली कौन सा ज़्यादा चलता है प्रोडक्ट? बेसिक हमारा राजमा और हनी चलता है सर. हनी कौन सा वाला? ये दोनों मल्टी चलते हैं. फ्लोरा और वो भी वाइल्ड फॉरेस्ट? दोनों चलते हैं. अच्छा.
तो आपकी प्राइस रेंज कितने में वेरी करती है कि कौन सा प्रोडक्ट से लेकर कितने रेंज तक जाते हो? जैसे सबसे कम पैसे वाला कौन सा प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा? महंगा सर हनी जाता है, हनी? बाकी ये नॉर्मल ही रहता है सारा। कितना रेंज आती है इसमें? 150-200 रुपये? 150 अच्छा, ये आपके सारे प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल ही उसमें है, ऑर्गेनिक रहता है। ऑर्गेनिक होता और है। प्रोडक्शन आप कैसे करते हो? कोई प्लांट वगैरह आपका कहीं? प्लांट भी लगे हैं, लेकिन और किसानों को भी जोड़ा गया है। मतलब ऐसे यूनियन टाइप? यूनियन बनाई, ग्रुप बनाया यही गया जो और फार्म ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है एक। अच्छा, इसमें- उसी में ही सारे इसमें हमारे लगभग 800 किसान हैं इसमें ऐड किए गए। 800? उनका ही ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अच्छा, वही मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, फिर उसके बाद आप पैकिंग वगैरह करते हो और लेबलिंग वगैरह। बिल्कुल। तो किस नाम से बिकते हैं इसके? ये अलग अलग रेट से मिलते हैं। जैसे ये हो गया, ये 380 का पड़ता है यहाँ अच्छा, दिल्ली में? ठीक दिल्ली। है। और आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में बनता कितना का होगा ऐसे कुछ? इसमें ऐसा है कि लगभग 80% ग्रॉस प्रॉफिट रहता है? ठीक है, चलो ओके भैया, थैंक यू सो मच भैया। आदि महोत्सव में जाने के बाद इट वॉज अ फन। आदि महोत्सव में कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। दे हैड स्टॉल्स फ्रॉम एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड, कि मतलब कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, नॉट लाइक वर्ल्ड बुक फेयर, क्योंकि वहाँ तो सब पढ़े लिखे थे, तो वहाँ पे तो वो नहीं देंगे इंटरव्यू। यहाँ तो people were seeing the camera and smiling and giving the interview easily. अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई आ जाओ और वीडियो बना लो, कोई बात ही नहीं है। बिजनेस मैं प्रॉफिट भी बता देता हूँ। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक दैट। तो आदि महोत्सव वॉज फन, बट बुक फेयर वॉज, गर्मी बहुत थी भाई, बहुत गर्मी थी, और टाइम मिला था 3 दिन का। लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ अचीव कर भी लिया है, बहुत कुछ नहीं भी करा। तो